اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ عزیزان گرامی وقار، کل کے تقریر میں اور گزشتہ شب آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کے دونوں نونہال بچوں کی شہادت سماعت فرمائی تھی، اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت حر اور حضرت عباس علمدار کی شہادت بھی بیان کی گئی تھی۔ ہم کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس منظر کو جو کربلا کے میدان میں پیش آیا تھا اسے کوئی بھی مقرر اپنی تقریر میں اور کوئی بھی مصنف اپنی تحریر میں اجاگر کر سکتا ہے۔ وہ امام حسین کا حق تھا جو انہوں نے ادا کر دیا۔ آج ہم غلامان حسین صرف ان کی یاد مناتے ہیں اور ان کے یاد کے ذریعے اپنے دلوں کو جلا بخشتے ہیں اور اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام علی مقام سید الشہداء کرب و بلا کی سرزمین پر 3 روز کے بھوکے پیاسے ہیں، اور اس 3 روز کے بھوک اور پیاس کی عالم میں ایک ایک کر کے آپ کے جانثاران شہید ہو رہے ہیں۔ ان میں سے حضرت زہیر بن قین ہیں جنہوں نے کہا ہے امام میں آپ کے اوپر جان جو ہے وہ نچھاور کرنا چاہتا ہوں، مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ابھی گلشن فاطمہ کے اندر بے شمار ایسے پھول تھے جن کو مرجھانا باقی تھا، اور کربلا کی ریزگار پر جنہیں بکھرنا جن کا مقدر ہو چکا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسین کے علاوہ اور بھی 4 بیٹے میدان کربلا کے اندر تھے جن کے نام جو ہے وہ خلفائے راشدین کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ ایک کا نام حضرت ابو بکر بن علی تھا، اور دوسرے بیٹے جو حضرت علی کے ہی بیٹے حضرت امام حسین کے بھائی تھے ان کا حضرت عمر بن علی تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان بن علی تھا، اور چوتھے بیٹے کا نام جعفر ابن علی تھا۔ یہ بیٹے بھی تھے، اور اس کے علاوہ حضرت مسلم ابن عقیل جنہوں نے پہلے کوفیوں کی بدعہدی کے وجہ سے شہادت پائی تھی اور ان کے 2 بیٹے شہید ہوئے تھے، ان کا ایک نوجوان بیٹا کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ تھا، ان کا نام تھا عبداللہ۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی بھی تھے جن کے نام جو ہے عبد الرحمن، عبداللہ اور جعفر، یہ 3 نام تھے جو حضرت مسلم بن عقیل، یعنی کہ جانثاران کے علاوہ فرد جو گھر کے تھے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، جو ایک ایک کر کے میدان کربلا کے اندر امام حسین کے اوپر اور اسلام کے لیے اپنی شہادت کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا کیا امام مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اور کربلا کا میدان کیسا سجا ہوا تھا، ایک طرف امام حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور خیمے کے پیچھے ایک خندق کھود کر کے، جو خندق تحفظ کے لیے بنایا جاتا تھا اس زمانے کے اندر، کہ ایک بہت بڑا گڈھا کھودا جاتا
اور اس میں یا تو پانی اگر میسر ہو تو نہیں تو آگ جلا دی جاتی تھی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے ہماری طرف نہ آ سکے۔ تو امام حسین کے جو خیمے نصب تھے ان خیموں کے پیچھے خندق کھود کر کے اس میں آگ جلا دیا گیا تھا تاکہ جب حملہ ہو تو صرف سامنے سے ہو اور پیچھے سے جو ہے حملہ ور آ کر نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اس طریقے سے جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، امام عالی مقام کا خیمہ ایک طرف لگا ہوا ہے، کچھ میں بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں اور مستورات اہل بیت ہے اور کچھ نوجوان ہے۔ اس طریقے سے 72 نفوسان قدسیہ ہے اور 72 کی ایک قلیل جماعت ہے، اور ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے، ایک طرف 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور ایک طرف سگم شیر لوگ ہیں جن کے پاس آلات حرب و ضرب ہیں، جنگ کے لیے سارا سامان مہیا ہے، اور کھا پی کر کے وہ بالکل توانا ہو کر میدان کربلا میں سبط رسول کے مقابلے میں وہ لوگ آئے ہیں۔ تو ایک طرف دیکھا جائے تو وہ لشکر یزید ہے اور ایک طرف امام حسین کا لشکر ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے کئی بار اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا اور کئی بار یزیدیوں کو للکار کر کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ تم چلے آؤ، امام حسین جو ہے تمہیں صلاح عام دے رہا ہے یاران مقتدا کو کہ تم آ جاؤ، اب بھی اگر تم آؤ گے تو تمہارے لیے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم آؤ گے اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر شقاوت گھر کر گئی تھی اور بدبختی جن کا مقدر بن گیا تھا اور جن کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو چکا تھا، وہ جنتیوں کے فہرست میں کہاں اپنا نام لکھوانے والے تھے۔ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے کہا کہ اب کون کرب و بلا کے میدان میں جانے کے لیے حضرت مسلم ابن اوسجہ آئے۔ مسلم ابن اوسجہ انہوں نے اپنی شہادت پیش کی، جا کر للکارا اور موارث طلب کی۔ ادھر سے جو ہے یزیدیوں کے طرف سے پہلوان آئے، کئیوں کو بنار کرنے کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجہ نے بھی جامع شہادت نوش کی۔ اتنا مختصر سا وقت ہے کہ میں سب کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سمانا ہے ہمیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، 2 بچے دوڑتے ہوئے آئے اور دوڑتے ہوئے کہنے لگے امام ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ہم بھی شہادت کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیجیے رن میں جانے کی۔ پیچھے سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، اگر جگہ ہے تو آپ حضرات آگے بڑھ جائیے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ ادھر جو کونے وغیرہ میں خالی جگہ ہے، برتن وغیرہ سائڈ کر کے ادھر پیچھے بیٹھ جائیے تاکہ لوگ آسانی سے بیٹھ جائیں۔ آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ 2 بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں امام ہم بھی جو ہے وہ شہادت کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں بھی شہادت کا جام پینا ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم کون ہو، تم کس کے نونہال ہو؟ وہ بچے کہتے ہیں کہ جس کا سر آپ کے زانوں پر رکھا ہوا ہے، ہم مسلم ابن اوسجہ کے نونہال ہیں، ہم مسلم ابن اوسجہ کے بیٹے ہیں۔ میرے والد جب یہاں نہیں رہے دنیا میں تو ہم جی کر کے کیا کریں گے، ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم کربلا کے میدان میں جائیں اور آپ پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں۔ امام حسین نے روکنا تو چاہا لیکن وہ دونوں جو ہے بچے جو امام حسین کے پاس آئے تھے وہ دونوں جاتے ہیں اور وہ دونوں بھی جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ کے بعد زہیر بن قین نام کے ایک محب اہل بیت تھے، انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا امام حسین کا مدینے سے لے کر کے کربلا کے سفر تک، اور پھر یہاں پر جو کچھ بھی مصائب و آلام ہوئے ہر وقت انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ پر آنچ آنے سے پہلے اور آپ کو ایک تیر کا ایک تلوار کا زخم لگنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہادت ہو جائے، میں آپ کو اپنے سامنے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری یہ خواہش ہے۔ امام حسین تو وہاں مرنے مارنے کے لیے تیار تھے اور امام حسین نے یہ عہد کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے امام حسین چاہتے تو سب سے پہلے جاتے اور شہادت کا جام پی لیتے، سارا معاملہ ختم ہو جاتا، یہ بچوں کی شہادت نہ ہوتی، علی اکبر شہید نہ ہوتے، علی اصغر کا بچپنا نہ چھینا جاتا، حضرت زینب کی چادر تطہیر نہ اتاری جاتی۔ لیکن امام حسین آخر تک میدان کرب و بلا کے اندر موجود تھے تاکہ یہ اتمام حجت کے لیے
कोई हुज्जत बाकी न रहे और आखिरी वक्त में भी कोई आकर ये कहे कि हम जो है आपके काफिले में शामिल होना चाहते हैं और यजीद के साथ बरात का ऐलान करते हैं, तो इमाम हुसैन उसे भी माफ फरमा देते। इमाम हुसैन अला जद्दिही वालैहि सलाम के पास जब जानिसारान शहीद होते गए, उसके बाद हजरत अबू बकर बिन अली आए। ये हजरत अली के बेटे हैं। आज लोग कहते हैं हजरत अबू बकर और हजरत अली के दरमियान जो है वो लड़ाई थी, झगड़ा था। मोहब्बत की यह अलामत है कि हजरत अली अपने बेटे का नाम अबू बकर रख रहे हैं। कोई किसी से दुश्मनी रखने वाला किसी के नाम पर अपना नाम रखता है। आज दुनिया भर में हुसैन मिलेंगे लेकिन यजीद कोई नहीं मिलता। वहां इमाम हुसैन के वालिद हजरत अली ने अपने बेटों को क्या नाम रखा है? एक का नाम अबू बकर रखा है। ये दलालत है इस बात की कि वो हजरत अबू बकर से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। एक का नाम उमर रखा है, ये भी दलालत करती है। हजरत उस्मान रखा है एक बेटे का नाम, ये भी इस बात की गम्माज है और शाहिद और गवाह है कि हजरत उस्मान से भी आपकी जो है वो कल्बी मोहब्बत थी। एक एक करके अबू बकर बिन अली आए, वो भी शहीद हो गए। हजरत उमर बिन अली आए, उन्होंने भी शहादत का जाम किया है। और उसके बाद हजरत उस्मान बिन अली आए, वो भी मैदाने दश्तो करबला के अंदर उन्होंने अपनी शहादत को पेश किया है। और हजरत जाफर इब्न अली आए, उन्होंने भी अपनी शहादत को पेश किया और इमाम हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर दी है। हजरत अली के नौनिहाल जब शहीद हो गए हैं, अब हजरत मुस्लिम बिन अकील के जो बेटे थे अब्दुल्ला, उन्होंने भी शहादत का जाम करबला के मैदान में पिया। आपके जो भाई थे हजरत मुस्लिम इब्न अकील के, वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील थे, उन्होंने भी शहादत का जाम पिया। हजरत जाफर बिन अकील थे, अब्दुल्ला इब्न अकील थे, उन्होंने भी शहादत का जाम करबला के मैदान में एक एक करके पीते रहे। जब सारे जाने सारान शहीद हो गए, उसके बाद बारी आई गुलशन जहरा के फूलों की। हजरत इमाम हसन मुजतबा के बेटे हजरत कासिम हैं, जिनका मुस्तकबिल हजरत सकीना से वाबस्ता था। हजरत सकीना जो इमाम हुसैन की लख्ते जिगर नूरे नजर और दुख्तरे नेक अख्तर हैं। हजरत सकीना इमाम हुसैन की बेटी है और इमाम हसन के लख्ते जिगर हजरत कासिम से उनका निकाह होना था। आज बाज वाइजीन और लोग ये समझते हैं कि करबला के मैदान में जो है वो शादी हुई थी हजरत सकीना और हजरत कासिम की। ये रिवायतें गलत है और इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल वाबस्ता था और रिश्ता लगा था, बाद में शादी होनी थी। लेकिन करबला में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि वहां जो लोग आज मेहंदी उठाते हैं, मेहंदी कि हजरत कासिम की मेहंदी है और उनकी जो है निकाह की जो है वो तकरीबात करते हैं, ये सब बेअसल चीजें हैं। आपका मुस्तकबिल वाबस्ता था लेकिन शादी नहीं हुई और करबला में ऐसे कोई भी रसूम जो है अदा नहीं किए गए हैं। इमाम अली मकाम के पास हजरत कासिम आते हैं जो हसन मुजतबा आपके बड़े भाई की जो है वो याद दिलाते हैं। हजरत हसन मुजतबा की एक वाहिद यादगार हजरत कासिम की जात थी। वो आते हैं, कहते हैं चचा जान, एक एक करके तमाम लोगों ने शहादत का जाम पी लिया है, अब मेरा मन मचल रहा है, मेरा दिल भी जो है वो बेचैन हो रहा है कि मैं मैदान करबला में जाऊं, मैदान कारजार में जाऊं और शहादत का जाम पीऊं और इन बदनहादों को उनकी औकात याद दिला दूं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम मेरे भाई हसन की वाहिद यादगार हो, अगर तुम भी चले गए तो किसे देखकर मैं हसन को याद करूंगा। हजरत इमाम कासिम ने अपने बाजू से एक तावीज खोला जिसके बारे में वसीयत ये थी कि इसे जो है जब सबसे सख्त वक्त तुम पर आ जाए तो इस तावीज को खोल कर देख लेना। जब खोल कर देखते हैं तो क्या लिखा है कि जब हुसैन पर मुसीबत की घड़ी आए तो अपनी जान को उन पर कुर्बान कर देना। आए चचा जान, मुझे जो है वो ये मिल गया है, ये दलील और सबूत, अब करबला के मैदान में जाने से आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। ये देखिए मेरे नाम से वसीयत यहाँ पर मेरे अब्बा जान ने, मेरे बाबा ने लिखा हुआ था। हजरत इमाम हसन के साहबजादे हजरत कासिम को इमाम हुसैन ने रोका, लेकिन वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे और हजरत कासिम मैदान करबला में जाते हैं। वो शेर खुदा का शेर है। करबला के मैदान में कईयों को फिरनार करने के बाद वो वापस जब तीरों और तलवारों के जख्म से निढाल होकर लौटते हैं अपने खेमे के जानिब, इमाम हुसैन से कहते हैं या अम्मा हो अला तश, या अम्मा हो अला तश, प्यास की शिद्दत है, पानी का कतरा अगर मिल जाता
تو میں انہیں اور بھی جو ہے مزہ چکھا سکتا تھا۔ حضرت امام حسین امام عالی مقام فرماتے ہیں، اے بھتیجے یہاں تو پانی نہیں ہے لیکن کوثر پر نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوثر کا جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امام علی مقام کہ یہ جو بول سن کر، ان میٹھے بول اور تسلی کے الفاظ سن کر حضرت قاسم پھر رن میں نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد کافروں سے لڑتے رہے اور مبارز طلب کرتے رہے۔ ایک سے ایک جب مقابلہ ہوتا، بڑے پہلوان ان کے مقابلے میں آئے، لیکن ایک ایک کر کے جب آتا تھا کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ حضرت قاسم کو زیر کر سکے۔ جب کوفیوں نے دیکھا کہ یہ حیدر کرار کا شیر، حسن مجتبی کا بیٹا، اب ایک ایک کر کے اگر ہم لڑیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری پوری فوج ختم ہو جائے، لیکن ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے، ہم انہیں نہیں ہرا سکتے، ہم ان کو پراجت نہیں کر سکتے۔ ایسا کرو، اس گلشن زہرا کے پھول کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ اور وہی ہوا جو بزدل کرتے ہیں، چاروں جانب سے حضرت قاسم کو گھیرا گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، اور گھیرنے کے بعد ہر طرف سے تیروں کی بوچھار اور نیزے کی انی اور تیروں کی برچھار اور تلواریں جب چمکنے لگی ہے، وہ حیدر کرار کی کچھار کا دہاڑنے والا شیر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گیا، اور اس کے بعد شہادت کا جام پی لیتا ہے۔ امام علی مقام کو صدا دی جاتی ہے، اے امام اپنے بھتیجے کو لے کر جاؤ، دیکھو یہ خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ امام علی مقام اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو اٹھاتے ہیں اور خیمے میں لے کر آتے ہیں۔ ایک اور گلشن زہرا کا چراغ، علی کا لخت جگر، حضرت حسن کا نور نظر، فاطمہ کا نور عین، حضرت امام قاسم کی شہادت بھی کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو ہو جاتی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد گھر کے اندر صف ماتم بچھ گیا، ہر کوئی آہو بکا کر رہا تھا کہ قاسم کی جو ہے وہ جوانی لٹ گئی۔ امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا مستقبل میری بیٹی سے وابستہ ہے، میری بیٹی کا کیا ہوگا، بلکہ ہر چیز کو امام حسین نے اسلام کے اوپر کسی چیز کو فوقیت نہیں دی، ہر چیز کے اوپر اسلام کو فوقیت دی۔ اگر میرا بھتیجا شہید ہوتا ہے ہو جائے، میری بیٹی سے اگر اس کا رشتہ منسلک ہے، نہیں ہوتا ہے نہیں ہوئے، میرا بیٹا جاتا ہے جائے، میں علی اصغر کی بھی قربانی دوں گا، علی اکبر کی بھی قربانی دوں گا، اور محمد بھی شہید کروں گا، میرے بھتیجے بھی جائیں گے، بھانجے بھی جائیں گے، میرا لخت جگر نور نظر بھی جائے گا، لیکن میں اسلام پر ایک حرف نہیں آنے دوں گا، اسلام پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ حضرت قاسم کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر میدان میں جو ہے نکلتے ہیں۔ یہ علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، اور پیغمبر کے مشابہ تھے۔ حضور سے شکل و صورت حضرت علی اکبر کی ملتی تھی۔ حضرت علی اکبر نے کہا، بابا جان میں اب کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، میرا بھائی قاسم شہید ہو گیا ہے، اب مجھ سے رہ نہیں جاتا ہے کہ میں یہاں اور رک سکوں، اب مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائے کہ میں یہاں سے جا کر کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ حضرت امام حسین نے کہا، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میرے آنکھ کے چین، تجھے پالا ہے حضرت زینب نے، اپنی پھوپھی جان سے جا کر اجازت لو، میں تمہیں رن میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ادھر کوفیوں نے سوچا کہ ایک کے بعد دیگرے یہ جو ہے ان کے اوان و انصار شہید ہو رہے تھے، قتل ہو رہے تھے، اب دیکھتے ہیں جب ان کے گھر والوں کی باری آئے گی تب جھکیں گے حسین، جب ان کا اپنا بیٹا شہید کیا جائے گا، جب ان کا اپنا بھتیجا شہید کیا جائے گا تب جھکیں گے حسین۔ یزید ہمارے ہاتھ پر بیعت، یزید کے ہاتھ پر امام حسین ہاتھ دیں گے اور بیعت کریں گے، لیکن جبل جو ہے استقامت بنا ہوا وہ امام حسین، آج اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی ایک لاش آ جاتی ہے، چاہے بوڑھے کی ہو چاہے جوان کی ہو، میت اگر گھر کی ہے، ہمارا دل دہل جاتا ہے، سینہ پھٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہم بال بھی نوچتے ہیں، سینہ بھی پوٹتے ہیں، ہم ماتم کنا بھی ہو جاتے ہیں، ہم پورے گھر کو پورے محلے کو جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور ایسی ماتم، حالانکہ موت جو ہے وہ حقیقت ہے، ایک موت پر جب یہ عالم ہوتا ہے تو کربلا کے منظر کو آپ یاد کیجئے، وہ تنے تنہا 55 سال کا انسان حضرت امام حسین جو صبر و استقامت کا پیکر بن کے کربلا کے میدان میں ڈٹا ہوا ہے، ایک طرف حضرت
जो है हजरत कासिम की लाश भी रखी है, हजरत अब्बास की लाश भी रखी है, हजरत अब्दुल्ला की लाश भी रखी है, जाफर की लाश भी रखी है, हजरत मुस्लिम बिन औसजा, जुहैर बिन कीन और तमाम आवान अंसार की लाश रखे हुए हैं लाइन से, लेकिन आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं है, दिल में जो है वो दर्द और तकलीफ नहीं है, बल्कि वैसे ही सब्र की इस्तिकामत बनकर इमाम हुसैन खड़े हैं कि आज सब्र जो है, सब्र हुसैन दुनिया देखेगी। एक तरफ जो है जालिम और जाबिर करबला के मैदान में देखना है, अगर तुम्हें फिरऔन का जुल्म सितम देखना है तो वो तुम जो है वो करबला के मैदान में मिलेगा, तुम्हें नमरूद का तेवर देखना है तो वो भी करबला के मैदान में मिलेगा। यजीदियों की तरफ नमरूदी तेवर भी था, फिरौनी तेवर भी था। अगर तुम्हें अबू जहल का तेवर देखना है वो भी करबला के मैदान में मिलेगा। तुम्हें अगर शिमर का तेवर कुफ्र देखना है तो वो भी तुम्हें करबला में मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें अय्यूब का सब्र देखना है तो वो भी करबला में मिलेगा। हजरत यूसुफ का हुस्न तमकीन देखना है तो वो भी करबला में मिलेगा। मूसवी जलाल देखना है तो वो भी करबला में मिलेगा। ईसवी जलाल देखना है तो वो भी करबला के अंदर मिलेगा। तुम्हें देखना है तो ये सारी चीजें करबला के अंदर इकट्ठी थी। और जहां आजमाइश की बात आती है, ये आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीजों से इंसान की रखी है कि माल के जरिए आजमाया जाता है इंसान, औलाद के जरिए आजमाया जाता है इंसान, और अपनी जान के जरिए इंसान आजमाया जाता है। इंसान की आजमाइश कभी माल से होती है, कभी औलाद से होती है और कभी अपनी जान से होती है। लेकिन अगर इन तीनों का मजमुआ और संगम देखना है तो चलो करबला की सरजमीन पर। वहां इमाम हुसैन का माल भी लुट चुका है, आपके औलाद भी लुट चुके हैं और उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान दी है। सब्र और रजा का ऐसा पैकर बनकर दिखाया है इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर कि रहती दुनिया तक अगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी होते तो देखते तो अश्क जो है वो रश करते सब्र हुसैन के ऊपर। इमाम हुसैन ने सरजमीन करबला में कैसा सब्र का पैकर बनकर के दिखाया है। ये इमाम आली मकाम की जात है। हजरत अली अकबर आए, कहा अब्बा हुजूर, बाबा जान मुझे जाने की इजाजत दीजिए, अब मैं करबला के मैदान में जाना चाहता हूं। हजरत जैनब से इजाजत लेते हैं, लेकिन हजरत जैनब भी नमनाक आंखों से बहुत मुश्किल से हजरत अली अकबर को रन में जाने की इजाजत देते हैं। हजरत अली अकबर जब करबला के मैदान में पहुंचे, लोगों ने कहा ऐ शिमर, हम हुसैन से तो लड़ सकते हैं लेकिन अपने नबी से जंग नहीं कर सकते। शिमर ने कहा तुम्हें नबी कहां नजर आ रहे हैं? लोगों ने कहा वो देखो वो चले आ रहे हैं नबी। शिमर ने कहा तुम्हें धोखा हुआ है, वो नबी नहीं बल्कि शबीह नबी है। हजरत अली अकबर नबी अलैहिस्सलाम के मुशाबत है, शक्ल सूरत आपसे मैच करती थी, मिलती थी। हजरत अली अकबर मैदान करबला में जब जाते हैं तो अरज़क नाम एक पहलवान है जो बहुत डींगे मारता था और शाम और मिस्र के अंदर उसकी पहलवानी के और उसकी ताकत और शुजाअत का डंका बजता था। हजरत अली अकबर जो 18 साल की जवानी है, 18 साल उम्र ही क्या होती है, चेहरे पर रेशे भी नहीं आते हैं और फूल गुलाब के जैसा खिलता हुआ होता है, 3 दिन का भूखा प्यासा वो शहजादा करबला के मैदान में जब पहुंचता है तो शिमर और इब्न साद ने कहा जाओ अरज़क से कहा जाओ इस बच्चे का मुकाबला करो। वो कहता है कि ये मेरे लिए तौहीन की बात है कि मैं जो है वो शाम का इतना बड़ा बहादुर और बतल ये जो एक बच्चे के मुकाबले में जाओ, ये मेरे लिए सिल्लत की बात है। इसके लिए तो मेरे बेटे ही काफी है। 4 बेटे उसके साथ उस यजीदियों की फौज की जानिब से आए थे। एक बेटे ने कहा मैं जाता हूं, इसके लिए तो मैं ही काफी हूं। हजरत अली अकबर के पास जब उसका बेटा आता है, थोड़ी देर लड़ाई हुई, एक बेटा गया, दूसरा भी फिन्नार हुआ, तीसरे को भी मारकर जहन्नम रसीद किया, चौथे को भी जो है वो खाको खून में जब तड़पा दिया, वो गैसो गजब से जो है वो चेहरा उसका तमतमाने लगा। वो अरज़क नामी पहलवान आता है और आने के बाद जब करबला के मैदान में, तो मैदान जंग के अंदर जो इस तरीके की इजाजत होती है कि अपने दुश्मन को आप धोखा दे सकते हैं। हजरत अली अकबर ने कहा तू बड़ा शहसवार है, तू बड़ा पहलवान बनता है, तुझे तो अपना जीन कसना भी नहीं आता। वो जैसे ही जीन की तरफ झुका, इमाम अली अकबर ने हैदर कर्रार के शेर ने एक ऐसा कारी ज़र्ब लगाया है कि उसका गर्दन, उसका सर धड़ से अलग हो गया और तलवार चीरता हुआ जो है वो जमीन तक पहुंच गया। एक ही वार में वो बहुत बड़ा जो अपने आप को पहलवान कहता था वो भी जहन्नम रसीद हुआ। जब देखा कि मेरे बड़े बड़े पहलवान, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने देखा कि ये मेरे बड़े बड़े नामवर और चोटी के पहलवान जो है ये एक एक करके तो ये सारे ही मर जाएंगे, ऐसा करो कि वही हरबा, वही शैतानी चाल चला जाए जो हम हमेशा से चलते आए हैं।
कि अकेले बुलाओ मुझे, कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन की ये सदा थी और आखिरी वक्त तक अब जो है यहाँ पर घेर लिया गया इमाम अली अकबर को, और चारों तरफ से तीरों और तलवारों की बौछार होने लगी। हजरत अली अकबर वहां से निकलकर एक मर्तबा आते हैं अपने वालिद गिरामी के पास, और फिर वही सदा है, या अबाहु अल अतश, या अबाहु अल अतश, ऐ अब्बा हुजूर पानी, गला सूख रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि बेटे, जब मैं प्यासा होता था मेरे आका मेरे नाना जान अपने जबान को मेरे मुंह में देकर चुसाते थे, उससे मेरी प्यास बुझ जाती थी। आज तू भी वो अमल कर ले हजरत, शायद तेरी तिश्नगी कुछ कम हो जाए। हजरत इमाम अली अकबर ने अपने वालिद गिरामी की जबान को अपने मुंह में लेकर चूसा है तो उनकी तिश्नगी कुछ कम हुई। फिर गए हैं मैदान के अंदर और फिर एक मार्का जो है वो गर्म हुआ है। उसके बाद एक ऐसा वक्त भी फर्श जमीन ने देखा, अर्श ने भी देखा, अर्श अश्कबार था, आंसू बहा रहा था कि शेरे खुदा का लाल और फातिमा का नूर नजर, हैदर करार का लख्ते जिगर, हजरत इमाम हुसैन का नूर ऐन, हजरत फातिमा का दिल का चैन, वो हजरत अली अकबर की शहादत करबला के मैदान में हो जाती है। और वहां से हजरत अली अकबर की जब शहादत हुई, नेज़े की एक अली आपके सीने में पैवस्त थी, शिमर लई ने आवाज की हुसैन अपने लख्ते जिगर के लाशे को उठा कर ले जाओ। इमाम हुसैन बढ़ते हैं, जब उठाया है लाश को तो एक सीने के अंदर नेजा पैवस्त है, जब उसे निकालने की कोशिश की है तो सीने से सिर्फ नेजा नहीं निकला बल्कि हजरत अली अकबर का दिल भी निकल गया होगा। कितना मजबूत दिल था इमाम हुसैन का। बेटे की लाश जो है वो गोद के अंदर है, सीने में पैवस्त है नेजा और साथ में दिल बाहर आ गया है, लेकिन जबान पर सब्र और शुक्र के अल्फाज है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करते हैं और हर वक्त के मौला, ये एक अली अकबर तो क्या हजारों अली अकबर भी हो तो तेरे दीन के लिए ये हुसैन कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेगा। हजरत अली अकबर की लाशे को देख करके सब मातम बिछ गया है घर के अंदर। हजरत सकीना भी रोती हुई आई, हजरत जैनब, उम्मे रुबाब, शहर बानो, ये जो मस्तूराते अहले बैत थी, ये सब के सब आंखों में आंसू आ गए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ये रोने का वक्त नहीं है बल्कि ये सब्र का वक्त है। आए जैनब, अभी तुझे तो और भी सब्र करना है, अभी तो बात दौर समझनी है तुम्हें अहले बैत की, तुम्हें सब्र का जो है वो पैमाना पीना होगा, तुम्हें सब्र का पहाड़ बनना होगा, तुम्हारे लिए ये सब्र का वक्त है, अभी तो बहुत सारी शहादतें तुम्हें देखनी है। अल मुख्तसर ये कि हजरत अली अकबर की शहादत के बाद घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा था जिनका नाम अली असगर है। हजरत अली औसत ज़ैनुल आबिदीन को कहते हैं, जो बीमार थे और बिस्तर मर्ग पर थे, उन्हें रन में जाने की इजाजत नहीं दी गई, वो भी उठे थे और बुखार से उनका जिस्म तप रहा था और नेजा लेकर के नेजे के सहारे से आप खड़े थे। जब खैमा हुसैनी में इमाम हुसैन दाखिल हुए तो देखा कि ज़ैनुल आबिदीन ये खड़े हैं, कहा मैं भी जाना चाहता हूं करबला के मैदान में, मेरा भाई शहीद हो गया है, अब मैं भी जाकर यजीदियों को मजा चखाऊंगा। इमाम हुसैन ने कहा नहीं बेटे, तुझसे मेरी नस्ल का चलना है, तो जो है मेरी नस्ल की चलाने का जरिया है, इसलिए तुम्हें करबला के मैदान में नहीं जाना है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो रह जाते हैं, लेकिन 6 माह का एक नौनिहाल सिन्ने सगीर में इमाम अली असगर की जात है, जो छोटी सी जान है, 6 महीने का दूध पीता हुआ बच्चा। आपके जौजा ने, आपकी बीवी ने कहा कि इसे लेकर के जाए, शायद करबला में कोई तो रहम दिल होगा जिसका दिल इस बच्चे के लिए पिघल जाए, जिसका दिल मौम हो जाए। सारे ही पत्थर दिल तो नहीं हो गए। इमाम हुसैन से कहा लेकर जाइए, शायद जो है इसके लिए पानी का कुछ इंतजाम हो जाए। लेकिन गुलाम हुसैन का ये ईमान कहता है, हमारा विजदान के आलम में कोई फतवा न लगाए कि इमाम हुसैन से वो हजरत अली असगर वो जो जबान से कह नहीं सकते थे कि मैं करबला में जाऊंगा। जब बच्चे अपनी बात मनवाना चाहते हैं और अपनी तरफ तवज्जो को इत्तेफाक करवाना चाहते हैं, तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं बड़ों की, तो वो रोने लगते हैं। माँ भी अपने बच्चे को बगैर रोए दूध नहीं पिलाती है, खाना नहीं देती है। जब बच्चे रोते हैं तो उनकी ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। इमाम अली असगर बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनका रोना ये कहना था, बसावाने हाल से ये कह रहे थे, क्या है अब्बा हुजूर, जब मेरे भाई ने शहादत का जाम पी लिया है तो मैं किस लिए यहां रहूंगा। हर तरह से तारीख करबला मुकम्मल हो जाए कि एक नौनिहाल अली असगर 6 माह का, उसने भी शहादत का जाम पिया है। हजरत अली असगर को लेकर इमाम निकलते हैं करबला के मैदान में, हाथ में लिए हुए, कहा कि आए यजीदियो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है,
तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम इस बच्चे को पानी का एक कतरा पिला दो, पानी दे दो। पानी तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन हुरमला एक लईन शख्स था जिसने एक तीर चलाया है, और वो तीर हजरत अली असगर के हुलकूम में पैवस्त होते हुए हजरत इमाम हुसैन के बाजू में जाकर लगा है। हजरत अली असगर ने एक हिचकी ली और शहादत का जाम भी नोश कर लिया। इमाम हुसैन उन्हें लेकर के जब रोने की आवाज बंद हो गई, जब अपने खेमे में लेकर आए, तो शायद खवातीन ने सोचा होगा कि पानी मिल गया, पूछा कि लगता है इमाम बच्चे को पानी मिल गया है, इसलिए बच्चा रो नहीं रहा है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, बल्कि इसने भी जामे शहादत नोश किया है। दुनिया का पानी इसके लिए नहीं था, बल्कि जामे कौसर इसके लिए है। नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये अली असगर जाकर जामे कौसर नोश कर रहा है। हजरत अली असगर की भी शहादत हो गई। सोचिए क्या दर्दनाक जो है वो लम्हा रहा होगा कि छोटे छोटे बच्चे और नौजवान बेटे और भतीजे भाई सारे के सारे एक एक करके इमाम हुसैन के सामने शहीद होते रहे, लेकिन आखिरी खुतबा जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिया, अब तने तनहा है। इमाम हुसैन अब घर से निकलने वाले हैं। कहा कि शहरबानों से, उम्मे रुबाब से और बीवियों से, हजरत ज़ैनब से, सकीना से, कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं मैदान करबला में जाऊं और अपने नाना के दीन के लिए अपनी जान को पेश कर दूं। वो सारे ही रोने लगती हैं और कहते हैं इमाम हुसैन आप हमारा आखिरी सहारा है, हमारे बाद आपके बाद हमारा कौन सरदार होगा। लेकिन इमाम हुसैन ने किसी की बात नहीं सुनी और उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब आपके सर पर रसूलुल्लाह का अमामा रखती हैं और रसूलुल्लाह का जुब्बा पहनाती है। हजरत अमीर हमजा की ढाल आपके हाथ में दी जाती है और हजरत इमाम हसन का पटका आपके कमर में बांधा जाता है और जुल्फ़िकार हैदरी हजरत अली की तलवार हजरत इमाम हुसैन लेकर घोड़े पर जब सवार होते हैं तो घोड़ा जब बढ़ाया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। इमाम हुसैन ने कहा घोड़े से अपने कि तू डर गया यजीदियों से। इमाम हुसैन से जब कहा कि तू डर गया यजीदियों से, वो घोड़ा जबान हाल से कहता है, वो जबान तो नहीं होती लेकिन उसने कुछ इशारा किया कि अरे इमाम अली मकाम आप पीछे देखिए, सैयदा सकीना ने मेरे पैरों को छान रखा है, मैं उन्हें कुचलकर यजीदी नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं उन्हें बचाकर हुसैनी बनना चाहता हूं। अगर सकीना मेरे पैरों को छोड़ देंगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। हजरत सकीना से कहा इमाम हुसैन ने कि बेटी अब तुम जाओ करबला, क्या ये जो है ये मुतालबा है कि हुसैन का खून पी कर ही उसकी प्यास बुझेगी शायद। इमाम हुसैन जब जाते हैं आखिरी खुतबा वही इरशाद फरमाते हैं इत्माम हुज्जत के लिए कि कोई उज्र बाकी न रहे। ऐ यजीदियों अगर आज भी तुम जो है मेरे साथ आ जाओ तो जैसा हुर को मैंने माफ किया था वैसे ही आज अगर अली अकबर का भी कोई कातिल होगा, अली अकबर का कत्ल करके आएगा और वो माफी चाहेगा तो उसे भी माफी मिल जाएगी। आज अगर अली अकबर का भी कातिल आ जाए, अली असगर का भी कातिल आए, उसे भी माफी मिल जाएगी। आखिरी मौका तुम्हारे लिए है। और उन्होंने खुतबा दिया, क्या मैं रसूलुल्लाह का नवासा नहीं हूं? क्या तूने कभी मुझे नमाज छोड़ते हुए देखा है? क्या तुमने कभी शराब पीते हुए देखा है? तुमने कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ से जो है वो मुखालिफत करते हुए देखा है? तमाम ने जो है वो खामोशी छा गई। वो सब के सब दगाबाज, धोखेबाज, अहद शिकनी करने वाले लोग खामोश थे और उसमें तो वो लोग भी थे। इमाम हुसैन ने वही जो है वो सदा लगाई कि मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, सुखन फूल। इमाम हुसैन अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम ने करबला के मैदान में जब अपने तलवार को संभाला है, 55 साल का एक शख्स 3 दिन का भूखा प्यासा, कंधे के ऊपर अली असगर की लाशों का बोझ भी है, अली अकबर के जो है वो जवानी का बोझ भी है, अपने भतीजे की जवानी का बोझ भी है। और ये सारे जो है उलझनों और परेशानियों के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए निकलते हैं। तमीम नामी एक पहलवान बढ़ता है और इमाम हुसैन से मुकाबला चाहता है। मुबारिस तलब की हल में मुबारिजिन, है कोई जो मेरा मुकाबला करेगा। तमीम नामी एक पहलवान बढ़ा। इमाम हुसैन के सामने कौन टिकने वाला था? वो हैदर कर्रार का बेटा है जो खैबर के मैदान में खैबर के किले को उसके दरवाजे के एक हाथ से उखाड़ कर फेंक देता है, जो हजारों जो है लोगों के बराबर ताकत रखने वाला उस हैदर कर्रार और शेर खुदा का लखते जिगर नूरे नजर इमाम हुसैन है।
वो अगर चाहते तो वो इमाम हुसैन के सामने कोई टिक नहीं सकता था। इमाम हुसैन ने करामत भी करबला के मैदान में दिखाई है। ऐसा नहीं है, एक शख्स था जिसने कहा था ऐ हुसैन तुम जो है वो जहन्नम की आग में जलोगे। इमाम हुसैन ने कहा उसका ज्यादा मुस्तहिक तो है, और इतना कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मौला इसे जहन्नम की आग दुनिया में ही दिखा दे। उस शख्स का घोड़ा बिकता, वो जो है वो नीचे गिरता है, उसके जीन से उसका पैर फंसता है, और दौड़ते ही वो खंदक जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में किया था कि पीछे खंदक में आग लगी हुई थी, उस खंदक के अंदर जाकर उसे जो है वो झोंक देता है वो घोड़ा। दुनिया के अंदर ही उसने जो है मजा ठगा। इत्माम हुज्जत के लिए, उनके हक पर होने के लिए एक करामत भी जरूरी थी कि लोग अगर ये समझ रहे हैं कि इमाम हुसैन हक पर नहीं थे, इमाम हुसैन बातिल का साथ दे रहे थे, तो देख लो कि ये मुस्तजाब दावत है। इमाम हुसैन अगर अभी दुआ करें, तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, इधर जबान से निकली उधर कबूल हुई। इमाम हुसैन ने करबला में दुआ किया है तो वहां फौरन कबूलियत की सनद भी मिली है और बारे इजाबत से टकराई है। इसे भी देखकर अगर किसी की आंखें ना खुले तो उसके लिए कोई हुज्जत बाकी नहीं रहती। तमाम हुज्जत तमाम होने के बाद, तमाम लोगों से कह देने के बाद कि मैं वही नबी का नवासा हूं, अगर कोई नहीं पहचानता, कोई गलती से आया है, कोई धोखे से आया है, कोई ये समझ रहा है किसी और से जंग करने आया, तो लोग सुन लो, मैं हुसैन इब्ने अली, अली का बेटा हूं, फातिमा का नूर नजर हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं, और मुझे पहचान लो, मैं वही हुसैन हूं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे पर बिठाकर घुमाया करते थे, अपनी जबान को चुसाया करते थे और बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। मैं वही हुसैन हूं। अगर किसी को शक व शुबा है तो तुम आ करके जो है मुझे देख लो, और ताकि कल कयामत के दिन ये न कह सको कि हम जानते नहीं थे, अनजाने में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है। इतनी बातें होने के बाद जब हुज्जत तमाम हो गई, इमाम हुसैन करबला के मैदान में यके बाद दिगरे कई लोगों को फिन्नार करते हैं, और फिन्नार करने के बाद वही शिमर लईन ने कहा कि इन्हें घेर करके चारों तरफ से हमला किया जाए। जब चारों जानिब से हमला हुआ, जिधर को इमाम हुसैन बढ़ते कश्तों के पुश्ते लगा देते, सर जो है वो धड़ से अलग होकर जमीन के ऊपर गिर रहे थे। इमाम हुसैन की ये जांबाजी, ये बहादुरी देखकर वो घबरा गए और कहा कि और सख्त हमला करो कि जल्द से जल्द जो है वो इमाम का काम तमाम कर दिया जाए। अब इमाम हुसैन का वो वक्त आया था कि 72 जख्म सीने के ऊपर लगे हुए हैं, पूरा जिस्म जख्मों से चूर है, और आप घोड़े की जीन से फर्श जमीन पर तशरीफ लाते हैं। और एक रिवायत के मुताबिक कि असर का वक्त था, आपने सजदे में सर रखा है, और एक बदबख्त शिमर, और एक रिवायत के मुताबिक एक दूसरे शख्स का नाम मिलता है, उसने आकर के बढ़ करके कि हम हुसैन का सर काट लेंगे तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा तारीख में, तुम्हारी नाम पर दुनिया थूकती है, कोई कुत्ते का नाम भी तुम्हारे नाम पर नहीं रखता है, या तुमने हुसैन का सर काट के अपना नाम ऊंचा नहीं किया, बल्कि अपने नाम को जो है तारीख के अंदर स्याह औराक में तुमने दर्ज कराया है। और इमाम हुसैन के गोल्डन और सुनहरे अक्षरों में इमाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मयाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।